Hello students, welcome back to online English class. This is Anju Beniwal and today we are going to discuss the summary of the lesson The Sound of Music Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This lesson is written by Deborah Cowley. So let us read this summary of this lesson. Significant stages in the narrative. Narrative means this narration. इवलिन ग्लेनी के बारे में नरेट किया गया है, उसके लाइफ को वर्णन किया गया है. दिस इज कॉल्ड नरेटिव. व्हाट आर द मेन स्टेजेस, मेन थिंग्स इन हर लाइफ. 17-year-old Evelyn Glennie is traveling to attend the first day at the Royal Academy of Music. First day tha, she was going to Royal Academy of Music. She was going there for her interview, just like an interview. She was going there. It was her first day to go there. A music festival was being conducted there and she was going to this Royal Academy of Music in London. Attending this prestigious institution can be intimidating for anyone, but Evelyn is faced with an even bigger challenge. इतने prestigious, इतने बड़े, बहुत ही famous institution को attend करना, उसमें एक तरह से music learning के लिए admission पाना, it must be intimidating for anyone. किसी को भी ये किसी को भी ये जो फीलिंग होती है ना कि घबरा जाना, ओके, कोई भी इसको ऐसी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाते हुए घबराहट होना एक नॉर्मल सी बात होती है. बट इवलिन ग्लेनी के लिए इससे भी बड़ा एक चैलेंज था, एक और उसकी लाइफ में चैलेंज था जिसके सामने ये घबराहट जो है कुछ भी नहीं थी. शी इज डेफ. वो डेफ थी. शी कुड नॉट हियर. शी इज डेफ, unable to hear sounds. The reader is forced to wonder how someone who cannot hear is studying at this renowned college of music. और जो इस लेसन को रीड करते हैं तो उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी. वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि जो पर्सन सुन ही नहीं सकता, how he would be attending this college of music. म्यूजिक तो लिसनिंग से ही आता है ना, लिसनिंग करोगे तभी लर्न करोगे म्यूजिक के साउंड्स को. और इवलिन ग्लेनी वाज डेफ. शी कुड नॉट लिसन टू द साउंड्स, सो हाउ कुड शी अटेंड दैट कॉलेज. व्हेन शी वाज 11 इट वाज डिस्कवर्ड दैट शी वाज लूजिंग हर हियरिंग. एट द एज ऑफ 11 it was noticed, it was discovered that she was not able to hear properly. It is revealed that she was not born deaf, but as a result of gradual nerve damage began to lose her hearing. It was not by birth. Born deaf नहीं थी, but धीरे धीरे उसकी nerves damage होती गई कानों की, सुनने की, and she lost her hearing completely. 8 years old थी तब पता चला था कि उसकी she was losing her hearing power, और जब 11 की थी तो पता चला कि वो completely वो deaf हो चुकी है. This would have proved disastrous for any child, especially for someone interested in music. और जिस म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले चाइल्ड को अगर ये पता चले that she was becoming deaf, तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस, बहुत ही भयानक सिचुएशन हो सकती है एक चाइल्ड के लिए कि ये मेरे साथ क्या हो गया. Evelyn found that she could sense certain musical notes in different parts of her body. वो अपनी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट से म्यूजिक के जो साउंड्स होती हैं उनको सुन पाती थी. शी डिड नॉट गिव अप डिस्पाइट डिस्करेजमेंट फ्रॉम मैनी टीचर्स. बहुत सारे टीचर्स ने डिस्करेज किया, एनकरेज नहीं, डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन उसके बावजूद शी डिड नॉट गिव अप, उसने हिम्मत नहीं हारी. Under the guidance of a famous percussionist, she discovered that she could feel different vibrations and notes through different parts of her body. एक परकशनिस्ट थे, फेमस ड्रम बजाने वाले पर्सन थे, उनकी गाइडेंस के
उनकी गाइडेंस में इवलिन ने डिस्कवर किया कि वो म्यूजिक के डिफरेंट नोट्स और साउंड्स को अपनी बॉडी पार्ट्स के थ्रू फील कर सकती थी. एंड यू नो हु वाज दिस परकशनिस्ट? परकशनिस्ट होता है अ पर्सन हु कैन प्ले, हु इज अ मास्टर प्लेयर ऑफ ड्रम्स एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तो ड्रम्स जैसे दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले को परकशनिस्ट बोलते हैं. हु वाज दिस परकशनिस्ट? फेमस परकशनिस्ट, यू नो? यस, he was Ron Forbes. Okay. She worked hard to achieve many milestones. Milestones means achievements. बहुत सारी achievements उसने हासिल की. Milestones means achievements. बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की इवलिन ग्लेनी ने. Determined to succeed in music and lead a normal life, she pushed herself to achieve things that would be remarkable even for musicians who can hear normally. और अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ उसने वो चीजें हासिल की जो कि एक नॉर्मल जो पर्सन है, नॉर्मल हियरिंग वाला म्यूजिक का एक पर्सन या स्टूडेंट मुश्किल से हासिल कर सकता है. Even greater is the fact that she doesn't consider her achievements heroic. और इससे भी बड़ी बात क्या है कि अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ही बड़ा बहादुरी का कारनामा वो नहीं समझती. वो कहती है कि इट्स जस्ट द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क, दैट्स ऑल. कोई उसमें प्राउड फीलिंग नहीं आती कि उसने डेफ होते हुए भी ऐसा कुछ हासिल कर लिया. ओके, शी लीड्स अ नॉर्मल लाइफ और उसके लिए ये एक रूटीन जैसी बात है. Evelyn has become an inspiration for deaf children. और डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है वो. डेफ चिल्ड्रन को एनकरेजमेंट मिलती है उसका एग्जाम्पल देख के. Despite a hectic schedule of playing and at international concerts, she performs free for prisons and hospitals. उसका हेक्टिक शेड्यूल है. हेक्टिक मीन्स वेरी बिजी, बहुत ही बिजी शेड्यूल है उसका. इंटरनेशनल कंसर्ट्स करती है वो. कंसर्ट्स होते हैं म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस. म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को कंसर्ट्स बोलते हैं. तो इंटरनेशनल कंसर्ट्स अलग अलग देशों में अपने म्यूजिकल परफॉर्मेंस देती है. तो बहुत बिजी रहती है, कभी इस कंट्री में जाना है कभी उस कंट्री में, लेकिन फिर भी वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स के लिए, जेलों में कैदियों के लिए और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए अपनी परफॉर्मेंस फ्री में देती है. When deaf children look at her, they can see someone who did not give up in the face of adversity and worked hard to achieve her dreams. और डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चे जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये ऐसी पर्सन है जिसने एडवर्सिटी को, विपरीत परिस्थितियों को उसका सामना किया और हार्डवर्क किया और अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया. She is an inspiration to everyone as all of us face some difficulty or the other in our lives. हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिफिकल्टी फेस करते ही हैं. Her life teaches us that instead of being defeated by life's circumstances, we should continue to work hard. और उसकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हों, हमें उनसे हार नहीं माननी है, हमने हार्ड वर्क को कंटिन्यू करना है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ इवलिन ग्लेनी. इवलिन इज अ गिफ्टेड परकशनिस्ट with an extraordinary ability. While others hear music, she feels it, and this enables her to create wonderful music. Evelyn Glennie एक परकशनिस्ट है. गिफ्टेड मीन्स गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर बहुत स्किल है, स्किल्ड है वो. और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? एक असाधारण एबिलिटी उसके अंदर क्या है कि लोग तो सब तो म्यूजिक को सुन सकते हैं लेकिन वो म्यूजिक को फील कर सकती है और इसी वजह से वो वंडरफुल म्यूजिक क्रिएट कर सकती है. This internationally acclaimed musician had a very challenging childhood. Acclaimed means famous. Okay, internationally famous, पूरे विश्व में जानी मानी है ये म्यूजिशियन. इसका चाइल्डहुड बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही डिफिकल्टीज से भरा हुआ था.
She started losing her hearing when she was 8, and by the time she was 11 she was almost totally deaf. 8 years की थी तब से उसकी हियरिंग पावर कम होती चली गई और 11 साल की होते होते ऑलमोस्ट डेफ हो चुकी थी वो. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन कौन है? इवलिन ग्लेनी. ओके, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन वॉज नॉट डेटर्ड. डेटर्ड होता है रुक जाना या इन अड़चनों के सामने हार मान लेना. इसको किसी भी तरीके से ये किसी भी तरह से डगमगाई नहीं. एंड वॉज डिटरमाइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. परस्यू मीन्स कंटिन्यू. म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट बनाए रखा. शी फॉलोड द एडवाइस ऑफ हर मेंटर. मेंटर क्या होता है? मेंटर होता है गुरु, जिससे हम कुछ सीखते हैं, जो हमें लाइफ के लेसन सिखाता है, जीना सिखाता है, या हमें कोई भी कला सिखाता है. हमारे गुरु. ओके, तो अपने गुरु से, जो कि द नोटेड परकशनिस्ट था, बहुत ही नोटेड मीन्स बहुत ही फेमस परकशनिस्ट कौन थे? रॉन फॉर्बेस. रॉन फॉर्बेस वॉज हर मेंटर. ओके, तो उसकी एडवाइस को माना एंड लिसन टू म्यूजिक नॉट विद हर ईयर्स बट विद हर अदर सेंसेस. रॉन फॉर्बेस ने उसको क्या कहा था? डू नॉट लिसन टू म्यूजिक, डू नॉट लिसन टू द साउंड्स थ्रू योर ईयर्स, कि अपने कानों से मत सुनो, बट विद अदर इन द अदर वे, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो. She realized that she could actually feel the music, sense certain notes in different parts of her body. और इसी एडवाइस को फॉलो करते हुए उसने फील किया, उसे लगा, उसने रियलाइज किया कि वो म्यूजिक को सेंस कर सकती है. कुछ नोट्स का मीनिंग होता है म्यूजिक की जो ताल होती है, या जो भी उसकी म्यूजिकल नोट्स जिनको कहते हैं. ओके, संगीत की धुन को, किसी आवाजों को वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू फील कर सकती थी. दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ. और जब उसको अपनी बॉडी पार्ट्स में फील हुआ तो ये उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था. कई बार हम जैसे बैठे हैं अपनी सीट पे और बहुत जोर से धमाका, कोई धड़ाम की आवाज आती है, तो हमारे बॉडी में वाइब्रेशंस होती है ना, तो वो वाइब्रेशंस अगर हमारे कान बंद भी हैं, वो वाइब्रेशंस हम फील कर सकते हैं. सपोज टेबल पे टैप कर रहे हो, एक हाथ टेबल पे रख के देखें और दूसरे से टेबल पे टैप करें, ऐसे रख के और ऐसे ऐसे टैप करें, तो वो साउंड जो हमें मिलती फील होती है, इसी तरह से इवलिन को साउंड्स फील होने लगी थी. इन 1991 it was a turning point in her life. Determination and hard work led to success. और उसके determination, पक्का इरादा, और उसके hard work ने उसको success दिलाई. She toured to the UK. UK means United Kingdom. इंग्लैंड में उसने अपना टूर किया, घूमने गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. और किसके साथ गई? एक यंग पीपल का ऑर्केस्ट्रा था, म्यूजिकल ग्रुप था. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. ऑडिशन देना, अपने म्यूजिक को सुनाना ताकि वहां पर एडमिशन हो सके. किसी चीज में परफॉर्मेंस के से पहले एंट्री लेने के लिए जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो किसी म्यूजिकल इवेंट में एंट्रेंस के लिए ऑडिशन होता है. और आपको पता भी है, कई बार हम लोग कुछ कॉन्टेस्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स को भेजते हैं, तो ऑडिशन लिया जाता है. ओके, फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जो है, वहां उसके लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. इस एकेडमी में आने वाले जो बेस्ट स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स होते थे, हाईएस्ट स्कोर करने वाले, उनमें से एक बनी. उसने बहुत ही अच्छा अपना एंट्रेंस वहां पर दिया, ऑडिशन दिया, एक रिकॉर्ड बनाया. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप, ग्रुप में म्यूजिक बजाना, ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स ग्रुप में म्यूजिकल परफॉर्मेंस देना. उससे वो सोलो परफॉर्मेंसेस पे आ गई. सोलो मीन्स सिंगल ही पार्टिसिपेंट जिसमें होता है, अकेली. ठीक है, अब ऑर्केस्ट्रा में तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग पर्सन्स मिल के बजाते हैं. ठीक है, वो एक मिला जुला एक
जो कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट होता है, और सोलो में एक ही पर्सन म्यूजिक बजाता है, अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और उसके वो ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्केस्ट्रा में सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सोलो में एक ही पर्सन होता है, तो वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, रॉयल एकेडमी जो थी उसमें 3 साल का कोर्स था, शी हैड वन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने टॉप के जो अवार्ड्स होते थे वो मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स उसने हासिल कर लिए। सून शी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर परकशनिस्ट। सॉट आफ्टर मीन्स जिसके पीछे पीछे लोग घूमते हैं, ऐसी वो फेमस पर्सनैलिटी बन गई। When she plays the xylophone, Evelyn can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Xylophone होता है जैसे स्टिक्स को पकड़ के ऐसे ऐसे म्यूजिक बजाया जाता है, ओके तो xylophone जब वो बजाती है तो स्टिक्स में से उसकी फिंगर टिप्स में, ये फिंगर टिप्स होती हैं, तो स्टिक से फिंगर टिप्स में उसको म्यूजिक के नोट्स सुनाई देते हैं, म्यूजिक की साउंड उसको फील होती है। एंड बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस, और जब ड्रम बजा रही होती है तो उस ड्रम के सहारे वो आगे को झुकी होती है, अपनी बॉडी को टच करके रखती है ड्रम से, तो उसके रेजोनेंसेस, उसकी जो ध्वनि होती है, धुन होती है, उसको वो फील कर सकती है। She removes her shoes while standing on a wooden platform so she can feel the vibrations pass through her feet. और जब वुडन प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अगर वो परफॉर्मेंस देती है तो अपने शूज उतार के जाती है वहां पे, ताकि वो अपने पैरों के साथ वाइब्रेशन फील कर सके म्यूजिक की। In 1991 she was presented with the She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Soloist of the Year, Solo Musician of the Year अवार्ड जो था, जो कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी नाम की एक संस्था थी, उसका सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो उसने 1991 में हासिल किया। Evelyn is modest about her achievements. अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत विनम्र है, अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती, कोई गर्व की भावना शो नहीं करती, प्राउड शो नहीं करती। She is also compassionate, दूसरों के दुख दर्द को समझती है। Apart from her regular concerts, she gives free performances in prisons and hospitals. और अपने रेगुलर कंसर्ट्स तो करती है, म्यूजिकल जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसके अलावा प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री परफॉर्मेंसेज देती है। शी ऑल्सो मेक्स टाइम फॉर क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और छोटे यंग बच्चों के लिए जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं उनकी क्लासेस भी लेती है, अपना टाइम मैनेज करती है ताकि उनको सिखा सके। सो इन दिस वे Evelyn Glennie, who was a deaf girl, she became the most sought after percussionist in the world. Thank you for watching the video.